इससे दिल्ली से पहले आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए थे अलग अलग, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे एस्पिरेंट्स को वो क्लैट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है या डीओ का एग्जाम क्लियर नहीं होता है एक ही बारे में, तो बहुत हताश हो जाते हैं। तो अगर आप वो बता दें तो इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ईच वन ऑफ अस टू नो। After clearing DGS, I counted how many exams I gave. So I gave 14 pre, ओह। 7 mains, and this was my third interview. Hello everyone, I welcome you to our channel Legal Pedagogy, and today with immense pleasure I would like to congratulate everyone who is a viewer today with us, that today we have with us Mr. Shiva Parashar sir, who recently qualified Delhi Judicial Services examination with all India rank 42. And as we all know that it takes sheer courage and hard work to be at that level, तो सर से आज हम बात करने वाले हैं, इस पूरी वीडियो में उनकी जर्नी को जानेंगे और उन बातों को समझेंगे जिसकी जरूरत हम सभी को होती है अगर हम जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। तो सर, थैंक यू सो मच। इट्स रियली काइंड ऑफ यू कि आपने हमें ये समय दिया अपना, अपने बिजी शेड्यूल में से। सो इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। Thank you, Devanshu, for having me here. And I must say, this initiative that you guys have started, it is going to take legal knowledge and legal education to a far higher level. क्योंकि आप लोग जो information YouTube के जरिए students को दे रहे हो, this is going to affect masses at much higher level in near future. So good luck to you on this journey as well. Thank you so much. We seek your blessings for the future to come so that we are able to do justice to everyone who is watching this channel. Thank you so much. सर, एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है बच्चों में जानने की कि जैसे हर कोई 5 इयर्स बी एल एल बी प्रोग्राम से नहीं होता है, तो आपने लॉ स्कूल की जर्नी कब शुरुआत की, कब आपने अटेम्प्ट दिया जुडिशियल सर्विसेज का, तो थोड़ा सा अगर आप उस Uh, I started my law school in 2013. पर। That is at Rajiv Gandhi National University of Law, Patiala. ओके। So I gave my CLAT sometime before that, and I was enrolled there. ओके। 2013 to 2018 was my BLLB. ओके। So उस time में always had this inclination towards law to begin with, and then जब जैसे ही law join करा, gradually inclination develop हुआ towards judiciary. ओके। It was due to the internships or getting to know the law and legal culture and legal practice. So there was this inclination towards judiciary, but at that time I didn't know how to prepare for it and how to manage. So in 2018 I enrolled myself at a coaching center ओके। and I started my coaching. So there in between I gave my exams. ओके। कुछ clear हुए, कुछ clear नहीं हुए. So जी। finally it led me to where I am right now. इससे दिल्ली से पहले आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए थे अलग अलग, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे एस्पिरेंट्स को वो क्लैट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है या डीओ का एग्जाम क्लियर नहीं होता है एक ही बारे में, तो बहुत हताश हो जाते हैं। तो अगर आप वो बता दें तो इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ईच वन ऑफ अस टू नो। After clearing DGS, I counted how many exams I gave. So I gave 14 pre, ओ। 7 mains, and this was my third interview. ओ। So सो yes, सो यू गिव yes, सो मच ऑफ एग्जामिनेशंस जस्ट बिफोर डीजीएस, राइट? सो yes. लगता है इट टेक्स लॉट ऑफ करेज कि बार बार अटेम्प्ट देना और कोशिश करना। हाँ, I believe if you are going to get it cleared in the first time, then nothing like it. But हाँ, बार try करना to get failure one after the other, and then again going for it. It takes some amount of courage. It takes amount of inspiration in yourself, and it takes some amount of confidence in your own self. अगर आपके अंदर वो खुद के अंदर वो confidence नहीं है that I am going to clear this exam, आप नहीं कर पाओगे. Even I found this very interestingly that when time was passing, because in between there was Corona, so कोई exam नहीं हुआ उस पूरे time में. You start to unlearn things. यस यस। क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो, बीच में टाइम गैप आ रहा है, राइट। सो चीजें स्लो हो जाती हैं. तो उस टाइम में दिस इज स्पेशली फॉर समबडी जो जिसको एक या दो फेलियर्स हुए हैं, एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे. सो गेट ओवर इट. आप अनलर्न करो, ट्राई बी क्रिएटिव. कुछ नया तरीके से आप पढ़ाई करनी स्टार्ट करो. गेट इन टू न्यूअर फॉर्म्स लाइक यूट्यूब. या। आप यूट्यूब से कुछ नया सीखो. आप क्रिएटिव हो, थोड़ा स्मार्टली
स्टडी करनी चाहिए पड़ती है उसके लिए. I believe ups and downs are very, मतलब they are the basic nature of every human entity. मतलब you will pass through ups and downs. अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो तो ये ups and downs तो आते ही रहते हैं जिंदगी में. बिल्कुल. सर अप्स एंड डाउन्स. ये सर एक सवाल और आता है एस्पिरेंट्स के मन में कि जैसे वो लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर में ही सोचने लगते हैं कि मेरे को जुडिशरी में जाना है, तो ये राइट टाइम कब होता है सर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आइदर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और आफ्टर यू गिव सम टाइम टू द लॉ स्कूल देन स्टार्ट? दिस इज वेरी आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका कोई देयर इज नो राइट टाइम एंड देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी. Okay. आई फील नॉलेज एक ऐसी चीज है, इवन इफ यू आर हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन द फर्स्ट ईयर, दैट नॉलेज विल ऑलवेज हेल्प यू. Right. बट टू गिव एन आंसर टू इट, आई थिंक अगर 5 ईयर कोर्स है, आफ्टर थर्ड ईयर you can start preparing, because उस टाइम तक कॉलेज में भी you have done with your most basic subjects, जो कि आपके CPC, CRPC कोर सब्जेक्ट्स आपके हो चुके होते हैं. So thereafter you can start preparing. राइट. और सर जैसे ग्रेजुएशन के बाद जो 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम करते हैं, तो शुड दे स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, क्योंकि 3 साल का ही एलएलबी प्रोग्राम है, या वो पहले साल में थोड़ा लॉ को समझें और फिर सेकंड ईयर में स्विच करें? I think it's always better कि आप फर्स्ट टाइम में लॉ को समझो, फर्स्ट ईयर में लॉ को समझो, you get a hold of different kinds of laws, and to in your second year आप start करो, because by that time आपके अंदर एक basic understanding of law आ जाएगी, because law is nothing but logic. So Right. वो logic जब आपको समझ आना start हो जाएगा, then you can grasp much higher things and much more. So Okay. by the time you reach second. और सर फिर एक और इस सवाल में देखता हूँ, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हैं सभी व्यूअर्स के ही हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ तो उनके मन में ये सब सवाल आते रहते हैं. तो कुछ लोग ये कहते हैं वो एस्पिरेंट्स की, सर आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, आई डोंट हैव so much of economic backup that I can afford education from any coaching institution for judiciary, क्योंकि जुडिशरी का थोड़ा ज्यादा रहता है पूरा एक्सपेंसेस. तो सर ये खुद से भी प्रिपरेशन हो सकती है, और खुद से प्रिपेयर करें तो कैसे करें, अगर इस बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर दें? हाँ, I believe coaching center, more than education, they give you some kind of guidance, Right. that how to approach an examination. If Right. you're going to study something, what to study and what not to study. Because when you are preparing for examination, you just not only need to know what to study, but also what not to study. Right. आप सब कुछ पढ़ने नहीं बैठ सकते. तो coaching center की advantage ये होती है, they give you guidance. But if in case you obviously not everyone can afford a coaching center, so self study में भी मतलब there are innumerable instances जहाँ पे self study में भी लोगों ने exams clear करे हैं. All you need is the right amount of dedication and some guidance. That guidance could be from your college teachers or could be from you guys as well. YouTube पे or different forms of internet पे different forms हैं जहाँ पे people share their opinions, people guide what to do and what not to do. So the idea that coaching center से exam clear होगा, that is a misnomer. Self study से बहुत लोग clear करते हैं. You just need to have the right mind and you need to have a pinpointed focus कि ये चीज ऐसे करनी, ये चीज ऐसे करनी. You need to have a system. Then you can clear anything. कोचिंग सेंटर judicial anything. लगता है आपका थोड़ा टाइम बचा देता है, अगर आप इधर उधर भटक रहे हो तो एक डायरेक्शन बस दिखा देता है कि इस डायरेक्शन पे आपको चलना है. और वो डायरेक्शन अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स इतना डेवलप हो गए हैं कि अगर आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को देखें तो वहां से वो डायरेक्शन भी ले सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल. देयर इज नो एक्सक्यूज टू सक्सेस आई बिलीव. तो जहां से भी जो भी मिले यू शुड केटर टू इट. बिल्कुल. सर एक और सवाल मेरे से पूछा गया है कि कैसे कोई टारगेट स्टेट बनाए, मतलब कि इस स्टेट को टारगेट करें, दिल्ली को टारगेट करें, हिमाचल को करें, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस सबका थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, तो कैसे इसको वो सेलेक्ट करें? I believe target state सबका first of all I think perspective जाता है home state पे. जी. That people want to stay in their home state. On the basis of syllabus or on the basis of language. Right. Because if I want to give a paper of Gujarat judiciary, then I have to learn Gujarati. Right. Similarly for Punjab, I'll have to learn Punjabi. So that is one way you can think of your target state. And another way is you can look at the syllabus. Before this year, the states of Punjab, Haryana and Delhi, they used to have similar syllabus. Now, obviously Delhi has increased the number of subjects, the number of topics.
But earlier Punjab, Haryana, Delhi used to have similar, and also Himachal. So once you are preparing for these states, you can give any of them. And then there's another criteria that a lot of students give Madhya Pradesh examinations. Right. Because unka syllabus bhi, it is very short and crisp. Right. Except for 2 local laws, बाकी सारे basic and general laws हैं. You can give that exam as well. तो सर ये देख लें कि किस किस का सिलेबस एकदम सिमिलर है. एक तो पहले अपने लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लें. अगर हिंदी अपन लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं, Obviously. लैंग्वेज को टारगेट कर सिमिलर सिलेबस जिनका है, लोकल लॉज बस अलग अलग उन्हें शायद पढ़ने पड़ेंगे अलग अलग स्टेट के. हाँ, वो लोकल लॉज में भी once you start reading them, you'll know. If you have start reading rent acts, then Rajasthan, be it Rajasthan Rent Act, be it Madhya Pradesh Rent Act, or be it Haryana Rent Act, the idea will be similar. Section की numbering different होगी, but the law and the logics they remain in the local laws. Okay, तो सेक्शन नंबर्स एंड एवरीथिंग इज वेरी मच सिमिलर लोकल लॉज में भी. ऐसा नहीं है, हुआ नहीं बनाना चाहिए कि मतलब मध्य प्रदेश का अलग कैसे पढ़ूंगा, राजस्थान का अलग कैसे पढ़ूंगा. नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली आई हैव सेड अर्लियर, लॉ इज लॉजिक. तो अगर हमने उस एक्ट का, उस लॉ का लॉजिक समझ लिया, देन उसको हमें टाइम नहीं लगता उसको समझने में. जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस, वही शायद जरूरी है उस समय पर. और सर कोई वैसे आइडियल टाइम टेबल होता नहीं है, पर यूट्यूब पे अक्सर बच्चे यही सर्च करते हैं कि एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर हम प्रिपेयर करें. टाइम टेबल वैसे इंसान का अपना पर्सनल होता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में. फिर भी आपका क्या टाइम टेबल रहा था, थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया दें. आई थिंक मेरा जो टाइम टेबल था वो 2 phases में रहा है. Because I graduated in 2018, I enrolled into a coaching, and thereafter वहां मैंने पढ़ाई करी. In between exams दिए नहीं निकले. Then I 2021 I went into litigation. तो वो 2 phases मेरा टाइम टेबल था. So अगर मैं शुरू की बात करूं तो it was the entire day. हम सुबह कोचिंग जा रहे हैं, शाम को आके घर में पढ़ना है. Because once what you have studied, you have to revise it, and it's always better if you revise it during the same day. Right. If you neglect upon it, तो वो मुश्किल हो जाता है. But what I wanted or what I aspired to do always, उसमें obviously ऊपर नीचे होती थी चीजें. I never had an overly ambitious timetable कि मेरे को 10 टास्क करने हैं दिन के. I kept 3-4 tasks कि आज मैंने ये particular subject पढ़ना है. Along with it, I have to do a bit of GK and a bit of language. So what I always aspired to do was a balanced timetable. Okay. कि structure इस तरह से हो कि balance आप लगा सको, and overly ambitious हो के सब कुछ करने की तरफ मत भागो कि आज एक दिन में मैंने सब कुछ ही कर लेना है. Because it is going to tire your own self and your own body. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सर मुझे लगता है चाहिए होती है. मतलब अगर आप पूरे दिन पढ़ते रहेंगे तो वो भी you won't be able to concentrate much, I believe. You need to have some time for your own self. आपने कुछ पढ़ा, आपको बीच में breaks, you require breaks. And वो breaks ये नहीं कि आपने obviously कोई टीवी सीरीज देख ली उस बीच में, या आपने कोई मोबाइल पे गेम खेल कर लिया, रील वील ये सब देख लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया. You need to have breaks जिसमें it may be anything. You can just take a walk, take a walk of kilometer or 2. You can do exercises. Something which rejuvenates you is what you require. एंड सर जैसे लॉ स्कूल में जाते हैं तो बहुत जल्दी बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं कि इंटर्नशिप में कर लेता हूँ, चाहे उनका एम हो जुडिशरी में जाने का, बट दे ट्राई टू इन्वेस्ट देयर टाइम इन इंटर्नशिप्स और इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेजेस. तो सर वो इंटर्नशिप या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो कॉलेजेस में अलग अलग सेल्स होते हैं, क्या एस्पिरेंट को वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑल्दो वी नो कि जुडिशरी का खुद में एक पहाड़ जैसा सिलेबस होता है, तो क्या इंटर्नशिप उसको कुछ वैल्यू ऐड करती है उसके सीवी में व्हाइल फॉर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, या ऐसे कुछ नहीं है? I think internship plays a vital role, very vital role in the span of a law student. क्योंकि whatever we study in the law school, it is very important. Sure, it is very important, but it gives you a practical approach. It broadens your horizons. आपको समझ आता है. अगर आपको कोई चॉइस करनी है कि मेरे को जुडिशरी में ही जाना है, तो आपको फिर भी एक ऑल्टरनेटिव रहेगा कि हाँ ये एस्पेक्ट है. लिटिगेशन यहाँ पे इस तरह से होता है. Even in a law firm, this is how you work. Right. Even I have made more than 10 internships. मैंने 10 से ज्यादा internships करी थी law school के टाइम में, and in different fields. Be it a policy making organization, or even in a law firm, or under an advocate. So it helps you.
इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, जो बात आती है कि मेरे को किस एरिया में जाना है, किस एरिया में नहीं जाना है. बट हाँ, अगर आपका शुरू से सपना जुडिशरी में जाने का रहा है, तो ऑब्वियसली आप, बट देन अगेन यू कैन intern under an advocate and understand how the court works, Right. how a judge perceives a document, and how an advocate perceives a document, Right. how an advocate brings his facts before the court, Right. and what the court asks him in return. So Right. ये सारी कोर्ट मैनेजमेंट, कोर्ट हैंडलिंग, ये आपको इंटर्नशिप से ही आई. सो यस, आई डू बिलीव अगर आप जुडिशरी भी कर रहे हो, इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर अभी हमने जिक्र किया कि उसके पास एक बैकअप रहता है फिर भी, टू ही इज अवेयर अबाउट कि एडवोकेसी के ये ट्रेड यू हैव टू डू लाइक दिस. तो सर ये प्लान बी, एक सीरीज भी आई थी एस्पिरेंट्स करके, यूपीएससी की जर्नी पे थी, तो वहां पे वो प्लान बी की बात करते हैं. तो क्या आपको लगता है जुडिशरी के साथ कोई प्लान बी भी रखना चाहिए, या एक ही प्लान एंड बस अर्जुन की आग की अर्जुन को जैसे एक ही आग दिखती थी मछली की वैसे चलना चाहिए? इस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट या कोई सेफ रिस्क फ्री आंसर नहीं है. ऑब्वियसली इफ यू वांट टू क्लियर समथिंग, यू नीड टू हैव फोकस, जो अर्जुन की आंख वाली बात है, कि आपको वो मछली की वो आंख ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा. अदरवाइज अगर आप प्लान बी के बारे में सोचने लग जाओगे, देन आपका माइंड दूर होता जाएगा जुडिशरी से. बट एट द सेम टाइम यू आर योर ओन जज. आपको पता चल जाता है कि मेरे को अब क्या करना चाहिए. आई विल ओनली से फ्रॉम माय एग्जांपल. मैं कोई क्लियर कट इस चीज का आंसर नहीं दूंगा. आई जस्ट शेयर माय एग्जांपल. सो आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 2018, जुलाई 2018, राइट आफ्टर पासिंग आउट. सो 2019 and 2019 दिसंबर में आई फिनिश्ड माय कोचिंग. एग्जाम्स इन बिटवीन नहीं निकला. देयर आफ्टर ड्यू टू कोरोना कोई एग्जाम नहीं हुआ. 2021 I started litigation. Right. And the only reason I started litigation was not as a backup plan, but only to enhance my knowledge, and only to be more The curious and be more practical aspect. obviously to have a practical approach. Yes. और वो बहुत important है. Yes. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब at that time I also I had a plan B. If in case I don't get cleared, I still have something. Right. So एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके हमें आगे काम करना पड़ता है. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे. और सर अभी आपने बात की कि यू आर प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट एज वेल, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जुडिशरी और प्रैक्टिस को दोनों को साथ लेके चल रहे होते हैं. पर सर जितना मैंने ऑब्जर्व किया है व्हाइल बीइंग इन द कोर्ट, इतना हेक्टिक होता है सर वो पूरा प्रैक्टिस का समय, ग्रिलिंग एंड एवरीथिंग, कि शायद ही मुझे लगता है कि इतना समय और इतना बॉडी में इतने एनर्जी बचती होगी कि आके आके फिर जुडिशरी की किताबें उठाई जाएं. तो ऐसा भी है कि मतलब एडवोकेसी के साथ मैनेजेबल है जुडिशरी की प्रिपरेशन? I cleared it, so I can say it is manageable. Right. But yes, obviously the toll on your body is too much. I even remember कि मैं 7:30 पौने 8 तक ऑफिस से वापस आता था, 7:30 7:45. At 8 I used to have my dinner. Right. 8:30 में पढ़ने बैठ जाता था. So I only gave myself 45 minutes to 1 hour of break. And उसके बाद क्योंकि you don't have time. By 10 in the morning you have to reach court on 9:30. Right. And you have to have the entire day in court. Thereafter, go to your office, look for files of the next day, drafting karo, and uske baad you have to study as well. Right. So you have to look for smaller breaks in between. कि सुबह मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं, दोपहर में if I have time मैं थोड़ी देर और पढ़ाई कर लूं, रात को I give my time. And उसमें भी ये होता है कि it's not like कि आपको डेली पढ़ने का टाइम मिलेगा. But you have to maintain yourself with the studies. आपको ब्रेक नहीं आने देना है लंबा. If only thing I have learned कि अगर हम लंबा ब्रेक आ जाए, if we are into practice, साथ में तैयारी कर रहे हैं, but हमारा हफ्ते 10 दिन का ब्रेक आ जाए, then to get out of that break is difficult. अगर आप एक दिन मिस हो गई पढ़ाई, 2 दिन मिस हो गई, but third day you get back to it, then I'm sure everyone can clear it, whoever is practicing. Okay. सर एक स्टिग्मा शायद आप उससे जानते होंगे जो हमारे प्रोफेशन से अटैच्ड है, कि जो कुछ नहीं करते वो वकालत करते हैं. ठीक है सर, ऐसा लोग मानते थे पहले, अब तो द परसेप्शन हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो सर उसके बावजूद भी जब आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे होते हो तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, इमोशनल बैरियर्स आते हैं, प्रेशर आता है, फाइनेंशियल प्रेशर आता है कि आप कुछ अर्न करो, और आप आसपास देख रहे हो तो कि आईटी जॉब्स में जो आपके साथ दोस्त थे वो प्लेस्ड हो गए हैं, आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो.
क्योंकि फर्स्ट टाइम में सर सबका नहीं होता है, कई बार 5-6 साल भी लग जाते हैं। तो सर इसको कैसे मैनेज किया जाए, इस इमोशनल स्ट्रेस को जो इंसान फेस करता है? आई थिंक एक दो चीजें ये हैं कि हमेशा टू स्टे पॉजिटिव. राइट। If you remain positive, even if you have a failure, राइट। then nothing is impossible to you. अगर आप निराश हो जाओगे हर एक फेलियर पे, because every failure it teaches you something. अगर आप फेलियर को एज अ लेबल फेलियर देखोगे, then it is over for you. But if you take the failure, you see what were my faults. मैं कहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ, what things that I can make better. Then there's always a go ahead for you. And I always believed that the knowledge that I have accrued, that I have learned in all these years, nobody can take that away from me. राइट। जो मेरी knowledge है, because that knowledge it helped me in practice, it helped me in litigation. राइट। So what जो बाकी सबको थोड़ा टाइम लगा किसी चीज को समझने में while I was practicing, मुझे वो चीज जल्दी समझ आ जाती थी क्योंकि I had made a thorough learning of the all the bare acts. तो वहां मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए आई अंडरस्टूड कि पॉजिटिव रहना, एग्जाम्स अच्छे से पढ़ के तैयारी करके दो ताकि गिल्ट ना रहे, कभी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। रिग्रेट ना रहे कभी कोई कि नहीं मैं और पढ़ लेता, मैं और कुछ देख लेता, मैं ये, तो वो रिग्रेट ना रहे. अगर आपके मन में वो गिल्ट, वो रिग्रेट नहीं है, तो आप पॉजिटिव भी रह सकते हो. अनदर थिंग आई वुड से इज टू हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड यू. आपका जो ग्रुप है, आपका जो सोशल ग्रुप है, that needs to be and that needs to have positive people. आपका, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ टाइम अलोन और कुछ टाइम वो सोशल सर्कल के में हो. वो सोशल सर्कल अगर आपको नेगेटिव लेके जा रहा है तो देयर इज नो टर्निंग बैक फ्रॉम यू, आप नीचे ही होते जाओगे. इसके अलावा आप जस्ट हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ. Nobody knows whether you're going to crack it or not other than your own self. राइट। राइट। अगर आप ही सोच लोगे कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, you are confused on your own self, then it's difficult. You have to have that courage, you have to have that confidence in your own self. Yet, yes, I'm going to clear it. सर ये एक पॉजिटिव सर्कल से अपने आप को सराउंड करने की बात आई, तो मैं आई वाज हियरिंग योर ब्रदर एज वेल अदर डे. सो ही टोल्ड कि जब भी कोई पूछता था वेयर इज शिवा, सो वी यूज्ड टू से कि ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है. देयर वाज अ स्टोर रूम व्हिच वाज कन्वर्टेड इनटू अ स्टडी रूम फॉर यू. तो सर आपने सोशल एकदम बैरियर, मतलब सोशल डिटैचमेंट कर दिया था एकदम, या आप फिर भी कनेक्टेड थे लोगों से, मतलब सोशल सर्कल आपने मेंटेन किया था तब भी? नहीं, आई वॉज कनेक्टेड विद पीपल. सोशल सर्कल मैंने बिल्कुल स्टॉप नहीं कर दिया था, बट आई मेड अ फ्यू चेंजेस. लाइक आई न्यू मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ज्यादा टाइम ना रहूं, बिकॉज दैट इज एन एडिक्शन इन इटसेल्फ एंड यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग. सो वो चीजें कम करो. बट यस, अगर आप पूरा सोशल सर्कल अपना खत्म कर दोगे एंड सिर्फ बुक्स में लगे रह जाओगे, then because the age you are right now, you may be 24, 25, 26, 27, that is never going to come back. You will be 30, 32, 33, but you will never again be 24, 25, 26. तो आपको ये टाइम जीना है, या आपको ये टाइम भी एंजॉय करना है, बट एट द सेम टाइम विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. राइट। राइट। तो हाँ. और सर ये इंटरव्यू का जो राउंड आता है, आपने 3 इंटरव्यूज पहले दिए बिफोर क्लियरिंग डीजीएस. सो ये दिस वाज माय थर्ड इंटरव्यू. दिस वाज योर थर्ड इंटरव्यू. सो 3 इंटरव्यूज का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यूअर क्या उस समय देख रहा होता है? इज ही टेस्टिंग योर कॉन्फिडेंस और इज ही टेस्टिंग योर नॉलेज? व्हाट इज ही टेस्टिंग एट दैट मोमेंट? See, your knowledge is already tested. You have cleared your preliminary examination. You have cleared your mains examination. Right. So वो आपके basic knowledge पे they are confident, और वो they have scored you on that. What they are testing you is on your personality, Right. is on your confidence, and how you are going to take a question. Because it didn't happen in my interview, but during these rounds of interviews, they asked someone that what is area of a rectangle. Oh. So obviously they're not asking you कि हाँ आपको rectangle का area पता होना चाहिए, basic mathematics, but they're asking you कि that on your feet can you answer it, and once you're not able to answer, आप फंबल हो जाते हो ऐसे चैलेंज को देख के, आप कॉन्फिडेंटली उसको अप्रोच करते हो? and even if you're not able to answer, how it's going to affect the rest of the questions, because thereafter they will ask you law questions. But after taking a setback, can you answer basic questions or not? तो वो चीजें देखते हैं instead of
testing your knowledge. राइट। और सर सीपीसी सीआरपीसी का काफी ज्यादा टेरर एक मन में खौफ रहता है बहुत, मतलब सीपीसी का खासकर, जबकि सीपीसी आई बिलीव इज इजियर कंपेयर टू सीआरपीसी, बट स्टिल देयर इज अ टेरर ऑफ सीपीसी एंड सीआरपीसी इन द माइंड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स। तो ये सर कैसे अप्रोच किया जाए, थोड़ा इसके लिए अप्रोच अगर। दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द टेरर ऑफ सीपीसी। इट इज बिग इन इटसेल्फ कि हाँ बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं, बट if you study it thoroughly, then it's very easy, it's very systematic, it goes in a chronology कि आपको step by step the trial in itself समझ आएगा, and the only way out for CPC is to study it again and again and again, maybe 20 times, maybe 25 times. We'll have to study CPC, और कुछ टाइम बाद CPC खोल के कोई random sections पढ़ो, कोई random rules पढ़ो, so you will get to have more knowledge. आप short notes बनाओ CPC के, you make diagrams, you make charts, so as to understand the process of trial, these different stages of trial. और procedure के लिए I think to have short notes with you, वो काफी helpful रहते हैं. Same goes with CRPC. Only difference in CRPC is that it's not as systematic as CPC. You have to So correlate. you have to correlate, you have to interlink different sections कि हाँ ये stage में पढ़ रहा हूँ, then if I'm reading maybe 209 of CRPC, I have to read 323 with it as well. So ये आपको पढ़ना पड़ेगा, and with that if you make your short notes, if you make कि हाँ ये this I have to read with this and also this and with, along with this judgment, then both these procedures subjects are very easy. They become very easy. Maybe they are not easy as such, but they become easy for you. And for a judge, these two subjects are core subjects because as a judge you have to go for procedural laws. Substantive laws obviously applicable हैं, but procedure is your magna carta in itself. So sir, कोई मैसेज आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी बच्चे अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं लॉ स्कूल की, और बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं क्योंकि जुडिशरी करें तो कैसे करें सब चीजों के, कोई भी मैसेज, फाइनल वर्ड from your side to all these aspects? I just repeat it again. I think I have stated it earlier as well, that be truthful to your own self. You only know how much you are preparing and how much you are not prepared. So जब आप खुद से सही बोलोगे कि हाँ ये मैंने इतना कर लिया है, इतना बचा है, तो then you can assess your own self कि अगर कोई failure भी आता है, so then this was my mistake, and this I need. अगर आप उन mistake से सीख नहीं रहे हो, then that is a negative point that you need to take care of. So always learn from your mistakes. Life is much bigger than a judicial examination. So हताश होने की बात नहीं है कि अगर कोई एग्जाम क्लियर ना हो, एक बारी नहीं हो रहा, दो बारी नहीं हो रहा. As I said, I gave 14 pre-examinations, 7 mains, and this was my 3rd interview. So हाँ, कभी-कभी टाइम लग जाता है. Sometimes you crack it in first go, and nothing like it. But हाँ, अगर कभी-कभी टाइम लग रहा है, take something to learn out of that failure. That failure is not a dead end for you. So if you take it as a dead end, then सब कुछ आपके लिए negative हो जाएगा. Take positives out of everything that happens in your life. Or as I've said earlier as well, that the knowledge that you acquire during this whole period of preparation, nobody and nothing can take the knowledge away from you. So that knowledge always remains with you. And वो आपका हेल्प हमें कभी ना कभी कैसे ना कैसे तो करेगी. So just stay positive, be truthful to your own self, have no regrets, and definitely all those who prepare to be cleared. Thank you so much, sir. मतलब it was really a genuine and very kind of you that you gave this time to us from your precious schedule. तो इन द एंड मैं वही कहूंगा सभी एस्पिरेंट से जो भी तैयारी करें, किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कि सर ने भी वही बात बोली है कि मंजिल मिलेगी बेशक देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. सो आई वुड एंड ऑन दिस नोट. एंड अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो या कुछ आप हमें बताना चाहते हो, सजेशंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सर इज देयर ऑन लिंक्डइन एज वेल, तो अगर आप सर को सर्च करते हैं तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच हिम ऑन लिंक्डइन. सो थैंक यू सो मच. Stay tuned with us on your channel Legal Pedagogy. Thank you so much.